Hello students, good morning, class 8th algebraic expression, and the next topic is division of a monomile by another monomile. So, when we have given two monomiles and if one monomile, if we have to divide by given another monomile, then we will use the division law of exponent. So the division law of exponent क्या है? Let us suppose we have given a variable x and whole power is m, where m is any integer. If we have to divide this by another variable x whose power is n and where n is also integer. So this base is same, then it can be written as x power m whole upon x power n. Now this law of exponent में we will consider basically three conditions. First condition, when m is equals to n, base is same and the power of numerator is m and power of denominator is n, and if m is equals to n implies that x power m upon x power m, whether we will replace m by n or n by n. So अगर m n के बराबर हो जाता है तो x की पावर m से x की पावर m completely one time डिवाइड हो जाएगा. सेकेंड केस, when m is greater than n, अगर न्यूमरेटर में x की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में x की पावर से अगर ग्रेटर है, implies that x की power m upon x की power n will be equals to x raised to the power m minus n. Okay, where m is greater than n. Similarly, third condition, if m is less than n है, अगर m की वैल्यू n से छोटी है, then x power m upon x power n will be 1 upon x raised to the power n minus n. So these are the basically three conditions of the law of exponent, and on the basis of this law, we will divide a monomile by another monomile. So let us see exercise 5e, question number first. Simplify. What is the language? Simplify. Simplify means simply we have to just what we have to do in the expression. So question number first is 9x raised to the power 7 upon 3x raised to the power 5. देखिए न्यूमरेटर में जो मोनोमाइल है वो 9x की पावर 7 है, डिनोमिनेटर में 3x की पावर 5 है. देखिए this 9 and this 3, this is coefficient of variable x. 9 is coefficient of x की power 7 and 3 is the coefficient of x की power 5. We have to simply divide this 9x की power 7 by 3x की power 5. So numerical value से see on blackboard, numerical value से numerical value divide होगी तो 3 से 9 कितने बार divide होगा? 3 बार. तो is equals to 3 into, now देखिए numerator में x की power 7 है, denominator में 5 है. So we will use this law. When m is greater than n, then x power will be m minus n. So x power 7 minus 5, so it will be 3x square. यही आपका आंसर. Then question number second, divide minus 20y raised to the power 12 whole 4y raised to the power 8. See, what is the numerical coefficient? देखो 4 जो है 20 को 5 by टाइम्स डिवाइड करेंगे, 4 5 से 20. सो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपकी -5 है. अब देखो यहाँ वेरिएबल यहाँ y है, यहाँ पे भी y है, तो बेस तो सेम हो गया. पावर क्या है? न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो y raised to the power 12 minus 8, that is -5, y raised to the power 4. यही आपका आंसर है. Then question number 3 means third part of question number first. तो ये फर्स्ट का A था, this is B, this is C. So C is
minus 15 a raised to the power 7 upon minus 3 a raised to the power 15. See, numerator and denominator both the monomile are negative, so ये minus minus plus हो जाएगा. देखो 3 से 15 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा. अब a की पावर न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 15 है, so 5 अपॉन डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर में जाके माइनस होगी, तो a पावर 15 माइनस ऑफ 7, तो 5 अपॉन a raised to the power 8. So this is your answer. So please pause the video and note down. Then question number D of first D part is divide 18x raised to the power 4 y square whole upon 9x cube y 1. Okay, see numerical. What is numerical? 9 से 18 कितने बार डिवाइड हो जाएगा? 9 2 जा 18. देखो x की पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है, डिनोमिनेटर में 3 है, y की पावर भी न्यूमरेटर में ज्यादा, तो अपन क्या लिखेंगे? 2. x की पावर 4 माइनस 3, जो छोटी पावर है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे y की पावर भी 2 माइनस 1, तो आंसर आया 2x. 4 में से 3 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो भी 1, तो x पावर 1. दिस इज योर आंसर. Now question number second part E. Divide minus 35 x raised to the power 8 y raised to the power 9 whole upon minus 7 x raised to the power 3 y raised to the power 2. See, this minus minus will be plus. 7 से 35 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा. यहाँ देखिए 5 into, अब देखिए x की पावर न्यूमरेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 3, तो x की पावर 8 माइनस 3, y की पावर न्यूमरेटर में 9 है और डिनोमिनेटर में 2 है, so this is 5x raised to the power 5 y raised to the power 7. This is the answer. So please pause the video now. Now question B of second का B part is 48 a square b square c power 4 whole upon minus 12 ab c cube. Okay, now see, देखिए coefficient is 48, here 12, so 12 4 the 48 minus 4, a की पावर डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में ज्यादा, तो a की पावर 2 माइनस 1, ये वाली न्यूमरेटर में माइनस हो जाएगी. देखो b की पावर न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, c की पावर न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में 3 है, तो माइनस 4ab. देखो 2 माइनस 1 1, यहाँ पे भी 2 माइनस 1, a की पावर 1 b की पावर 1 और c की पावर also 1, so minus 4ab is your answer. Then C part of question number second, 10x raised to the power 20 y raised to the power 7 z raised to the power 4 whole upon 0.1 x raised to the power 16 y raised to the power 3 z raised to the power 9. Okay, see, देखो न्यूमरेटर में ये जो है, जैसे ही मैं डेसिमल यहाँ से हटाऊंगा यहाँ 0 आ जाएगा, सो कोएफिशिएंट तो आपका 100 हो गया. अब देखो x की पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है तो x की पावर 20 माइनस 16 और y की पावर भी न्यूमरेटर में ज्यादा है तो y की पावर 7 माइनस 3 और z की पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे, z की पावर 9 माइनस 4. सो आंसर विल बी 100 x raised to the power 4 y raised to the power 4 upon z raised to the power 5. This is the answer. Then question number D of second, divide decimal 6 a4 b cube c square whole upon decimal 3 a b power 5 c power 7. So देखिए डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, न्यूमरेटर में 10 कैरी, 10 से 10 कट गया. नाउ 6 अपॉन 3, ये 3 2 जा 6, तो न्यूमेरिकल तो आया आपका 2. a की पावर 4 a की पावर 1 तो 4 माइनस 1, b की पावर 3 यहाँ b की पावर 5
तो अपन डिनोमिनेटर में b की पावर 5 माइनस 3, जो छोटी क्वांटिटी है वो बड़ी में से, तो 3 नीचे जाकर के b की पावर 5 में से कट जाएगा। फिर देखो c पावर 2, c पावर 7, तो डिनोमिनेटर में c की पावर 7 में से कितना जाएगा 2। अब देखो आंसर क्या आया 2a³ अपॉन b 5 माइनस 3 b स्क्वायर c 7 माइनस 2 c की पावर 5। So this is your answer. So pause the video and note down. Question number 3. A part 3a cube b is multiplied 5ab cube whole upon 5ab into 6ab7. देखिए, one monomile is multiplied by another monomile. So कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? कांस्टेंट को कांस्टेंट से, तो 3 5 का न्यूमरेटर में 15, a की पावर 3, a की पावर 1, a की पावर 4, b की पावर 1, b की पावर 3, b की पावर भी 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है? जब मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होती है, a की पावर 3 और 1 ऐड होकर 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? b की पावर 1 और b की पावर 3, ये भी 4 हो जाएगा। हाँ, जहाँ नहीं समझ में आता बोल लीजिए। 5 6 यहाँ पे हो जाएगा 30, a की पावर 1 और a की पावर 1, ये a स्क्वायर हो जाएगा, b की पावर 1, b की पावर 7, b की पावर 8 हो जाएगा। आप देखो 15 से 30 कितने बार कट जाएगा? 2 बार। आप देखो a की पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है, b की पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा है, तो क्या करेंगे 1/2 a की पावर 4 में, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा और ये b की पावर 4 b की पावर 8 में से नीचे आके माइनस होगा। तो आंसर आया 1/2 a की पावर 2 अपॉन b की पावर 4। दैट्स योर आंसर। Then B part बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे स्टेप्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। सो 4ab into -7a³ b स्क्वायर होल अपॉन -14a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, आप देखें पहले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 into 4 -28 अपॉन -14। आप देखो a into a³ a की पावर 4, b into b स्क्वायर b³ नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस 14 2 जा 28। आप देखो 2 a की पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है तो a की पावर 4 माइनस 2, b की पावर भी न्यूमरेटर में ज्यादा है तो 3 माइनस 2, तो 2a स्क्वायर 3 माइनस 2 b की पावर 1, यही आपका आंसर है। वन मोर क्वेश्चन लेट अस डू। So C part is 5a square b square minus 100 b cube whole upon 5 square b whole square। ओके, आप बहुत बारीकी से समझना, बहुत छोटा क्वेश्चन है। पहले न्यूमरेटर को देखो 5 into 100 कितना होगा? -500 a स्क्वायर b2 और 3 b की पावर 5 होल अपॉन, देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 25 का भी होल स्क्वायर है। समझना है? तो 25 का स्क्वायर का मतलब 25 into 25 625। अब देखो b की पावर तो अंदर 1 है, पावर ऑन पावर आएगी तो b की पावर कितनी होगी 2। अब देखो ये भी 625 कैसे आया? 5 की पावर 2 होल पावर 2 था, 5 की पावर 2 होल पावर 2 का मतलब क्या है? 5 की पावर 4। इसका मतलब 5 कितने बार मल्टीप्लाई? 5 into 5 into 5, देखो 5 5 क्या 25, 25 क्या 125, 125 को 5 से तो 625। ऐसे इसलिए मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। नहीं तो आप 5 की पावर 2 पहले 25 यहाँ सोल्व कर लो और फिर 25 का स्क्वायर कितना होगा 6। वैसे भी मैंने 30 तक तो आपको स्क्वायर याद करने के लिए बोला था ना। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। ओके, आप देखो ये 500 और 620 ये 25 के मल्टीपल है। देखो 25 20 जा 500 होता है और 25 जा 625। अब फिर 5 से कट जाए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 25। आप देखो ये तो लोवेस्ट फॉर्म आ गया, अब तो कटेगा ही। आप देखिए a स्क्वायर b पावर 5 था तो न्यूमरेटर में तो a स्क्वायर रहेगा और b की पावर 5 पर नीचे b स्क्वायर है
ओके, तो a स्क्वायर तो है ही नहीं नीचे, तो ये b स्क्वायर कहां से रिड्यूस होगा, b की पावर 5 में से, तो b की पावर 5 माइनस 2, तो आंसर आया -4/5 a स्क्वायर b क्यूब। दैट्स योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा तब भी समझना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये एल की जेब्रा है ना, है? हाँ, एल जेब्रा। रोड पे जेब्रा के निशान होते हैं ना, हाँ, खतरनाक निशान। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ई पार्ट, 3x स्क्वायर होल क्यूब इनटू 3y। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। 3x होल क्यूब 3x होल स्क्वायर। आप ये 3x स्क्वायर का होल क्यूब है, ये 3 इस पे भी क्यूब आएगा, तो 3 का क्यूब इनटू x स्क्वायर, पावर ऑन पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। फॉर्मूला पढ़ा ना एक्सपोनेंट लो में, x की पावर m होल पावर n किसके बराबर होता है, x की पावर m इनटू n। पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो यहाँ तो 3 की पावर 3 इनटू 1, तो 3 की पावर 3 मतलब 27 हो जाएगा, x स्क्वायर इनटू 3 x की पावर 6 इनटू 3 y। आप देखो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 इनटू x की पावर 6 y होल अपॉन, देखो यहाँ डिनोमिनेटर 3 की पावर 3, ओके, 3 की पावर 3 x की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 2 और x की पावर 2। देखो 3x का होल स्क्वायर है ना, तो 3 की पावर भी 2 आएगी, x की पावर भी 2 आएगी। आप देखो ये 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 2, तो न्यूमरेटर में तो 3 की पावर 4 थी, डिनोमिनेटर में 3 की पावर कितनी होगी 5। न्यूमरेटर में x की पावर 6 y की पावर 1 थी, डिनोमिनेटर में x की पावर 3 और x स्क्वायर, x की पावर 3 x स्क्वायर x की पावर 5 हो जाएगा। आप देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप देखो दोनों का बेस सेम है, पावर कहां ज्यादा है डिनोमिनेटर में, तो 1/3 की पावर तो 5 माइनस 4 इनटू x की पावर कहां ज्यादा है न्यूमरेटर में, तो x की पावर 6 में से छोटी वाली सबसेट हो जाएगी, और y तो बेचारा अकेले ही है, वो अकेले ही रहेगा, अकेला ही चलो रे, ठीक है। आप देखो 1/3 की पावर 1, x की पावर 6 माइनस 5 1, y की पावर 1, ठीक है। तो आंसर 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो आंसर क्या आया xy/3। दैट्स योर आंसर। यही आपका लास्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। Class 8 algebraic expression, and today we are going to learn how we will divide a given polynomial by a monomial. So whenever we have given a polynomial means any algebraic expression containing a single variable and the power of variable in each term is a positive integral and complete number. So in this exercise 5F page number 84, we will divide a given polynomial by a monomial. Then first of all we will separate all the numerators term and divide by the given polynomial in denominator. So let us see, the first question is divide a polynomial 7a plus 7b by 7. Okay, so the given polynomial in numerator is 7a 7b and we have to divide it by 7, implies that 7a plus 7b whole upon 7. Now in numerator there are two terms and denominator is single term. So in first step we will separate, that is 7a upon 7 plus 7b upon 7. Now this 7 will be cancel out, so remaining is your a plus b और यही आपका आंसर है। Now question number b of question number first,
Question B is divide ax plus ay by a. So again in numerator the polynomial is ax plus ay divide by a. So separate the term ax upon a plus ay upon a. A से a cancel out हो जाएगा. So remaining x plus y is your answer. Then let question number C. Question number C is divide 6y minus 2 upon 2. So again in numerator there are two terms. See here, first term is 6y, second term is 2. So on separation you can write here on separation मतलब separate करने पर 6y upon 2 minus 2 upon 2. देखिए 2 से 6 3 टाइम कैंसिल होगा. सो 3y एंड 2 से 2 कितने बार डिवाइड हो जाएगा? 1 बार. तो 3y minus 1 is your answer. Please pause the video and note down. Question number D. Divide b minus a by b. So b minus a upon b. Separate b upon b minus a upon b. B से b cancel 1 minus a upon b. That's your answer. Then question number second part A. 8y minus of 8 by 8. So here see 8y minus 8 we have to divide by 8. So in numerator 2 term, denominator is single term. We can separate 8y upon 8 minus 8 upon 8. 8 से 8 cancel हो जाएगा. So y 8 upon 8 is 1. So y minus 1 is your answer. Then B is 6x की power 4 plus 3x cube plus 3x square. It should be divided by 3x square. So in numerator there are 3 term and denominator only 1 term. So on separation यहाँ लिखेंगे आप on separation की आप separate कर रहे हैं 6x की power 4 upon 3x square plus 3x cube upon 3x square plus 3x square upon 3x square. 3 2 जा 6 and 2x की पावर 4 माइनस 2. देखिए यहाँ पावर 4 है. 2x की पावर m अपॉन x की पावर n. अपने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर m अपॉन x की पावर n. लॉ ऑफ इंडिसेस व्हेन बेस आर सेम एंड पावर आर डिफरेंट इफ यू हैव टू डिवाइड देन अगर m की वैल्यू n से बड़ी है तो x की पावर m माइनस n लिखते हैं. कब? जब m ग्रेटर देन n है. तो सेकेंड केस में अगर m लेस देन n है तो 1 अपॉन m जो है वो डिनोमिनेटर की पावर में से लेस हो जाएगा. सो दिस इज द एक्सपोनेंट लॉ वी हैव टू अप्लाई हियर. देन 3 से 3 कैंसिल प्लस x की पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है तो 5 माइनस 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल और x से x स्क्वायर सो 1. सो 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 दैट इज योर आंसर. सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. Next question is divide question number C of second part 25 x raised to the power 8 minus 20 x raised to the power 5 and divide by 5 x cube y cube. देखिए again C in numerator C on the blackboard. On numerator there are two terms. This is the first term, this is the second term. And denominator is only single term. Therefore, it is known as a monomial, and this is a polynomial. Okay. So, first of all, what we will do on separation. सेपरेशन का मतलब न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर की सेकंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर की थर्ड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर.
और जहां प्लस है अपन प्लस रखेंगे और जहां माइनस है माइनस। जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है, नेगेटिव है। तो देखो पॉजिटिव 25x की पावर 8 अपॉन 5x क्यूब y3 माइनस 20x की पावर 5 अपॉन 5x क्यूब y क्यूब। ओके, देखिए पहले कोएफिशिएंट देखेंगे, 5 से 25 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 24 टाइम कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ x की पावर 8 है, फिर वही एक्सपोनेंट फॉर्मूला पॉजिटिव लॉ ऑफ इंडिसेस का, x की पावर m अपॉन x की पावर n, अगर m n से बड़ा है तो x की पावर m माइनस n लिखते हैं। कब, यहाँ कंडीशन भी लिखनी कि जब m ग्रेटर देन n है। और यही फॉर्मूला क्या लिखते हैं, देखो x की पावर m अपॉन x की पावर n में अगर n बड़ा है तो ये m न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की पावर में से तो ऊपर तो 1 रह जाएगा, ये नीचे जाएगा, और डिनोमिनेटर में x की पावर n माइनस m अगर m लेस देन n है तो, और x की पावर m अपॉन x की पावर n में अगर m n के बराबर है तो ये कट के किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ठीक है, उस केस में मैं या तो n को m के बराबर लिख दूंगा या m को n के बराबर लिख दूंगा, तो x की पावर m अपॉन x की पावर m 1। ये लॉ ऑफ इंडिसेस जो है, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अप्लाई कैसे करना, फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए x की पावर 8 है या x की पावर 3 है, तो ऊपर क्या बचा, कोएफिशिएंट तो 5, x की पावर 8 में से नीचे वाला पावर 3 है, x की पावर, ये y की पावर नहीं आएगी, वो तो y की पावर 3 वही रहेगी क्योंकि y की टर्म ही नहीं है, माइनस ये 4 है जेट इज x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3, तो x की पावर 5 में से ये x की पावर 3 वाली टर्म ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और ये y की पावर 3 तो नीचे है जेट इज। अब देखो फाइनली आंसर क्या आया, 5x की पावर कितनी है, 8 माइनस 3 कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन y की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 अपॉन y की पावर 3, और यही आपका आंसर है। So pause the video and note down. The next question D1 is क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट। बहुत पैसेंस से आपको सोल्व करना है क्योंकि ये पॉलिनोमियल का जो डिवीजन है अप टू 12th स्टैंडर्ड आपके यूज आएगा। ठीक है, तो डी पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड होल अपॉन एक्स वाई जेड। देखिए numerator there are two term, first term this and second term this, denominator single term है because all three are multiplied है। ठीक है, अगर बीच में प्लस माइनस है तो टर्म की संख्या 2 3 हो सकती है। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। न्यूमरेटर में जब एक से ज्यादा टर्म है, डिनोमिनेटर में केवल एक ही टर्म है, तो न्यूमरेटर की हर टर्म के नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं। यही डिवीजन का प्रोसेस है जो अपना आर्टिकल है डिवाइडिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमाइल। तो पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना, मोनोमाइल से। जिस नंबर को जिस दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, डिवीजन आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ये तो पता है, जो आंसर आता है क्वोशिएंट है और रिमाइंडर है बचता है। यहां तो कंप्लीट कटेगा। तो अब देखिए न्यूमरेटर की फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे ऑन सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब अलग अलग करने पर। तो न्यूमरेटर की पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। अब देखिए ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि सेम है, तो सेम है तो क्या होगा, अगर मुझे 8 को 8 से डिवाइड करना तो एक ही तो बार कटेगा, वो न्यूमेरिकल था, ये वेरिएबल है। आप देखिए यहां इधर देखो, पहले x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, y की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 2 है यहां पे, और यहां z की पावर 1 है। तो ये वही फॉर्मूला फिर से अपन देखो, x की पावर m अपॉन x की पावर n, लॉ ऑफ इंडिसेस में अगर m n से बड़ा है तो x की पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला अपन यूज लेंगे और कंडीशन लिखेंगे वेयर m इज ग्रेटर देन n। ओके, आप देखिए दूसरी चीज m और n जो है यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पूरे पूरे नंबर है, पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है। तो सिंपल डिनोमिनेटर वाला इंटीजर न्यूमरेटर की पावर में से माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1, z की पावर भी 2 माइनस 1। तो ये लिखना x की पावर 2 माइनस 1, y की पावर 2 माइनस 1, z की पावर भी 2
-1, माइनस ऑफ 1, तो x y z -1. That's your answer. Pause the video and not up. Now question number 3. Express each question as a sum. So on separation, (35) a raised to the power 5 upon -7 a की power 4, a की power 4 b square upon -7 a की power 4 -14 a cube b cube upon -7 a की power 4. First of all, see 35 is multiple of 7. Which one? Fifth multiple. This is the fourth multiple and this is the second multiple. Now -5 a की power 5 upon a की power 4, तो a की power 5 -4 plus -4 because denominator negative है, a की power 4 -4 b square, this minus minus plus 2a की पावर क्यूब -4 b3. देखिए यहाँ 3 -1 अपन पॉजिटिव एक्सपोनेंट बना देंगे, तो इट विल बी -5 a की पावर 1 -4 a की पावर 0 b की पावर 2 प्लस 2b क्यूब इंटू a की पावर -1. नेगेटिव एक्सपोनेंट है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे वापस पॉजिटिव बनाने के लिए, तो -5a -4 a की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 2b क्यूब अपॉन a की पावर 1. a की पावर -1 को अपन डिनोमिनेटर में ले जा करके पॉजिटिव एक्सपोनेंट बना लेंगे. सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन. देन 16th x square y b पार्ट में 16 x square y minus 48 x y square plus 8 x square y square whole upon 8 x square y square. On separation, numerator first term upon denominator 16 x square y square upon 8 x square y square minus numerator second term 48 x y square upon 8 x square y square plus 8 x square y square upon 8 x square y square. Now 8 2 जा 16, x square से x square कैंसिल एंड y की पावर 1 है ऊपर, तो ये y की पावर नीचे आ जाएगा 2 अपॉन y पावर 2 -1 माइनस 8 6 जा 48, सो -6. देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये y की पावर x की पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा है, तो अपॉन x स्क्वायर -1 प्लस दिस होल विल बी कैंसिल आउट वन टाइम, सो दिस इज योर आंसर. प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन. Then last question number 4. Last question number 4. Evaluate x upon y when
when x plus y upon y is equals to 21. When x plus y upon y is equals to 21. तो x upon y की वैल्यू निकालनी. देखिए इन दिस एक्सप्रेशन न्यूमरेटर 2 टर्म, डिनोमिनेटर इज सिंगल टर्म. So what we will do, simple, very simple question on separation. सेपरेशन में x अपॉन y लिखेंगे प्लस y अपॉन y लिखेंगे इज इक्वल टू 21. y से y कितने बार कट गए? 1 बार. तो x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 21. अब मुझे x अपॉन y की वैल्यू चाहिए तो मैं इस 1 को किधर ट्रांसफर करूंगा? राइट में. ये तो इक्वेशन हो गया. तो सिंपल अपन क्या करेंगे बेटे, राइट में, लेफ्ट में x अपॉन y रखा, 1 को राइट में ट्रांसफर कर दिया तो 21 माइनस 1 दैट इज x अपॉन y इज इक्वल टू सिंपल 20. और यही आपका आंसर. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन.